Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher. How are you? I hope you will find with good health. Today we will study Unit 6 of Class 2. The title of Unit 6 is Honesty. This is my first lecture of Class 2. My name is Samina Irshad. Now we start reading of honesty and its translation. Reading. Honesty means ईमानदारी. Zain and Nasir are friends. Zain और नासिर दोस्त हैं. They are also class fellows. वो class fellows भी हैं. One day, Zain and Nasir were waiting for their teacher. एक दिन Zain और नासिर अपनी टीचर का इंतज़ार कर रहे थे. They were showing each other their razors and colored pencils. वो एक दूसरे को अपनी रबर और colored pencils दिखा रहे थे. Zain had many beautiful razors and colored pencils. जैन के पास बहुत सी खूबसूरत रबर और कलर पेंसिल्स थीं. नासिर लाइक देम अ लॉट. नासिर ने भी इनको बहुत पसंद किया. ही विश्ड. उसने ख्वाहिश की. ही हैड देम टू. के उसके पास भी इतने ज़्यादा हों. जस्ट देन. इतनी देर में देयर टीचर केम इन. उनकी टीचर आ गई. They quickly put their razors and colored pencils back in their cases. उन्होंने जल्दी से अपनी रबर और कलर पेंसिल्स अपने केस में वापस रख दिए. In the evening, शाम को, नासिर sat down to do his homework. नासिर अपना काम करने के लिए बैठा. He opened his pencil case. उसने अपना पेंसिल बॉक्स खोला. There was Zain's razor in it. उसमें जैन की रेजर थी, रबर थी. नासिर was very happy to see the razor. नासिर जो था वो रबर देखकर बहुत खुश था. He ran to show it to his mother. वो भागकर अपनी अम्मी को दिखाने के लिए गया. Look mother, अम्मी देखो. I have Zain's razor. मेरे पास जैन की रबर है. I put it in my pencil case by mistake. मैंने इसे गलती से अपने पेंसिल बॉक्स में रख लिया है. But I would not give it back to him. लेकिन मैं अब उसे वापस नहीं दूंगा. He said. उसने कहा. His mother told him. उसकी अम्मी ने उसे बताया that it was wrong to keep somebody's things without asking permission. कि किसी की इजाज़त के बगैर किसी की कोई चीज़ रखना बहुत बड़ी गलती है. She then explained to him the importance of honesty. फिर उसकी अम्मी ने ईमानदारी की अहमियत की वजाहत की. नासिर realized his mistake. नासिर अपनी गलती जान गया. The next morning, अगली सुबह, he went to Zain and returned his razor. वो जैन के पास गया और उसकी रबर वापस दे दी. जैन was very happy to get back his razor. जैन अपनी रबर वापस लेकर बहुत खुश था. He praised नासिर for his honesty. उसने
नासिर की ईमानदारी की तारीफ की. Reading complete. Now we start its exercise. Its words meaning. Words meaning. Read the given words with their meanings. Words meanings. Mistake, गलती. Something done in a wrong way. Something done in a wrong way. Permission, इजाज़त. To allow somebody to keep or do something. To allow somebody to keep or do something. Praise, तारीफ करना. To say good words for somebody. To say good words for somebody. These are your dictation words. Dictation words: mistake, permission, praise. Answers these questions. Question answers. Question number 1. Where were Nasir and Zain sitting? नासिर और जैन कहाँ बैठे हुए थे? इसका आंसर है, आंसर नासिर एंड जैन वर सिटिंग इन देयर क्लासरूम एंड वेटिंग फॉर देयर टीचर. नासिर और जैन अपनी क्लास में बैठे हुए थे और वो अपनी टीचर का इंतज़ार कर रहे थे. Who had many beautiful razors? किसके पास बहुत सी खूबसूरत रेजर्स थीं? Zain had many beautiful razors. क्या आंसर है इसका? Zain had many beautiful razors. Zain के पास बहुत सी खूबसूरत रेजर्स थीं. Question number 3. How did Nasir realize his mistake? नासिर अपनी गलती कैसे जाना? नासिर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? आंसर है इसका, when his mother explained him the importance of honesty, then Nasir realized his mistake. जब उसकी अम्मी ने उसे ईमानदारी की अहमियत के बारे में वजाहत की तो नासिर को अपनी गलती का एहसास हो गया, अपनी गलती जान गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड जैन प्रेज नासिर? जैन ने नासिर की तारीफ क्यों की? आंसर है इसका, जैन प्रेज नासिर फॉर हिज होनेस्टी. जैन ने नासिर की तारीफ उसकी ईमानदारी की वजह से की. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू वर इन सच अ सिचुएशन व्हाट वुड यू डू? अगर आप भी इस सिचुएशन में हो, इस हालत में हो, तो आप क्या करेंगे? आपके साथ भी अगर ऐसा कोई आपको चीज़ मिली हो तो आप क्या करेंगे? आंसर है इसका, I would return someone's thing with honesty like Nasir. मैं भी नासिर की तरह ईमानदारी के साथ किसी की चीज़ वापस दे दूँगा. अंडरस्टैंड? बच्चों, आप भी ऐसे ईमानदारी के साथ चीज़ वापस करोगे ना? बिकॉज honesty is the best policy. Next, read the following masculine and feminine nouns. Masculine, feminine: brother, sister, uncle, aunt, father, mother, prince, princess. रिपीट करते हैं एक दफ़ा फिर. ब्रदर भाई और सिस्टर बहन, अंकल आंट, अंकल का आंट, फादर अब्बू, मदर अम्मी,
प्रिंस शहजादा, प्रिंसेस शहजादी। चूज एंड राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। इसमें से आपने वर्ड्स चूज करने हैं और करेक्ट बॉक्सेस में लिखने हैं। नेप्यू, ग्रैंडफादर, डॉटर, सर, वुमेन, ग्रैंडमदर, सन, मैडम, नाइस, मैन। मैस्कुलिन, फेमिनिन्स। नेप्यू, नाइस। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। सर, मैडम। सन, डॉटर। मैन, वुमेन। रिपीट, एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं इसको। नेप्यू, नाइस। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। सर, मैडम। सन, डॉटर। मैन, वुमेन। रीड एंड से दीज वर्ड्स अलाउड। ये वर्ड्स पढ़ें और ऊंची आवाज़ से बोलें। सेम बिगनिंग साउंड्स, सेम एंडिंग साउंड्स। एक जैसी आवाज़ वाले शुरू के अल्फाज और एक जैसी आवाज़ वाले आखिरी की आवाज़, जिसकी आखिरी आवाज़ एक जैसी है। सबसे पहले पढ़ते हैं सेम बिगनिंग साउंड। पेंसिल, पेन, पेट। ये देखें, पेंसिल, पेन, पेट, सेम साउंड्स हैं बिगनिंग की। क्लॉक, क्लाउड, क्लैप। क्लॉक, क्लाउड, क्लैप, सेम साउंड्स ऑफ बिगनिंग, सेम साउंड्स बिगनिंग की। आगे है सेम एंडिंग साउंड्स। मदर, ब्रदर, सिस्टर। मदर, ई आर आ रहा है, ब्रदर, सिस्टर, सेम साउंड्स हैं। मदर, ब्रदर, सिस्टर्स। आगे है किंग, रिंग, ब्रिंग, सेम एंडिंग साउंड्स। किंग, रिंग, ब्रिंग। Read the following sentences of pronouns. Pronouns. What is pronouns? पहले मैं आपको pronouns की definitions बताती हूँ. The words used in place of nouns are called pronouns. The words used in place of nouns are called pronouns. I, we, you, he, she, it and they are pronouns. यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं वो pronouns कहलाते हैं। मसलन I, we, you, he, she, it and they are pronouns. Nasir is in class 2. He is an honest boy. ही जो है वो प्रोनाउंस है इसमें। नासिर इज़ इन क्लास 2, ही इज़ एन होनेस्ट बॉय। ही जो है वो प्रोनाउन है। नासिर एंड जैन आर फ्रेंड्स। नासिर और जैन दोस्त हैं। दे आर क्लास फेलोज। दे जो है वो प्रोनाउन है, वो क्लास फेलो हैं। माई मदर इज़ आ डॉक्टर। मेरी अम्मी डॉक्टर हैं। शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। वो पढ़ाई में मेरी मदद करती हैं। इसमें शी जो है वो प्रोनाउंस है। माई मदर इज़ आ डॉक्टर, शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। शी प्रोनाउंस है। आपको प्रोनाउंस क्लियर हो गया? प्रोनाउंस क्या होता है? pronouns he, she, it, they. Understand? Rewrite the text below in your notebooks. Change the colored noun to pronouns. इसमें आपने nouns को pronouns में
चेंज करना है, ठीक है। ये आपने पैराग्राफ पढ़ना है और इसको चेंज करना है। जैन हैज़ न्यू कलर पेंसिल्स। जैन हैज़ न्यू कलर पेंसिल्स। जैन लाइक्स कलर पेंसिल्स। Zane keeps his colored pencils in a pencil case. Zane and Nasir are friends. Zane and Nasir sitting together in the classroom. Miss Amna is their class teacher. Miss Amna is a nice teacher. इसमें सब नाउन यूज़ हो रहे हैं, यानी कि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। इस पैराग्राफ में सब नाउन है। अब हमने इस पैराग्राफ को चेंज करना है प्रोनाउन में। ओके, जैन हैज़ न्यू कलर पेंसिल्स। ठीक है, जैन के पास नई कलर पेंसिल्स है। जैन नई कलर पेंसिल्स रखता है। ही लाइक्स कलर पेंसिल्स। ही जो है वो कलर में है, तो ही जो है वो प्रोनाउन है। ही लाइक्स कलर पेंसिल्स। He keeps his colored pencils in a pencil case. He जो है इसमें वो प्रोनाउन है। आगे है जैन एंड नासिर आर फ्रेंड्स। जैन और नासिर दोस्त हैं। दे सिट टुगेदर इन द क्लासरूम। दे जो है वो प्रोनाउन है इसमें। मिस आमना इज़ देयर क्लास टीचर। मिस आमना उनकी क्लास टीचर हैं। शी इज़ अ नाइस टीचर। वो अच्छी टीचर है। शी जो है इसमें वो प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड? रीड एंड से द गिवन वर्ड्स with the same beginning or ending sounds. Write them in the correct boxes. Add one more to each list. आपने इसमें से words choose करके same beginning sounds एक में लिखने हैं और same ending sounds एक में लिखने हैं। वर्ड्स हैं और फिर इसके अलावा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं वर्ड्स आपको पढ़ के बता रही हूँ। मैट, मैप, बैट, क्लास, नेस्ट, मॉर्निंग। वर्ड्स विद द सेम बिगनिंग साउंड्स। एक जैसी आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज, शुरू में जिनकी एक जैसी आवाज़ है। मैट, मैप, मॉर्निंग, माउंटेन, वर्क, वर्ड। एक दफ़ा रिपीट करते हैं। मैट, मैप, मॉर्निंग, माउंटेन, वर्क, वर्ड। वर्ड्स विद द सेम एंडिंग साउंड्स। एंडिंग साउंड जिनकी एक जैसी हैं वो वर्ड्स हैं। बैट, बैट, नेस्ट। ये देखिए एंडिंग साउंड एक जैसी आ रही है ना, टी की आवाज़ आ रही है। बैट, नेस्ट, क्लास, ग्लास, लुक, बुक, लुक, बुक। रिपीट, एक दफ़ा रिपीट करते हैं। बैट, नेस्ट, क्लास, ग्लास, लुक, बुक। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।